Hello everyone. Today we will revise our chapter number 1 class 8. Now, what is the chapter number 1? Crop production and management. In this chapter we study about the crop production and how can we manage it. Okay, now Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, scale, show, plug, etc. in the field. You have learned that all living organisms require food. Their plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their food from? The plants can make their food themselves. That's why they are known as the autotroph. Okay, so here one term is autotrophs. It means कि when some organism which can make their own food, they are known as the autotrophs, and plants can make their own food themselves. That's why they are known as the autotroph. Now, can you recall green plants? ये हो गया हमारा. The animals including human cannot make their own food. So animals, they are not make their own food. That's why they are known as the heterotrophs, because they are depend on plants. वो किस पे डिपेंड है? Plants पे, for their food, for their nutrition. So that is the mean. There are two terms. One is autotrophs and second is heterotrophs. Autotrophs which can make their own food. Okay. Now heterotrophs which cannot make their own food. So what is the example of autotrophs? Plants. And what is the example of heterotrophs? This is the animals. But first, all, why do we have to eat food? Yes. You already know that energy from the food is utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. तो जो हमें फूड से जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी हम किसमें यूटिलाइज कर रहे हैं? हमारे वर्क में, कि जैसे फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, जो लाइफ प्रोसेसेस जितने भी हैं, दीज आर लाइफ प्रोसेसेस, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. तो इन सब में क्या यूटिलाइज हो रही है? एनर्जी. और एनर्जी हमें कहां से मिल रही है? फूड से. तो द एनर्जी विच इज यूटिलाइज इन द डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बोथ. कि यहाँ पे हम जो एनर्जी हमें चाहिए वो हम किससे मिल रही है? फूड से. और फूड हमें कहां से मिल रहा है? प्लांट से. ओके. और कुछ जैसे कार्निवोरस भी होते हैं तो वो एनिमल से भी अपना फूड यूज में लेते हैं. तो यहाँ पे तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स बोथ. हम दोनों से ही अपना फूड गेन करते हैं. In order to provide food for a large population, regular production, proper management and distribution is necessary. तो in the previous year की अभी तो हमारे जो पॉपुलेशन कैसी हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है. पॉपुलेशन कितनी ज्यादा बढ़ रही है, तो उस पॉपुलेशन के लिए प्रॉपर वे में रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. तो जो हमारी क्रॉप है, हमें क्या चाहिए? फूड चाहिए. फूड कहां से मिलेगा? कि फूड हमें कहां से मिलेगा? एग्रीकल्चर से मिलेगा. तो उसमें जो एग्रीकल्चर है, क्रॉप है, तो उसका क्या हमें होना चाहिए? रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, ताकि टाइम टू टाइम जो फूड है वो सप्लाई हो सके. प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तभी क्या होगा? रेगुलर प्रोडक्शन होगा. अगर प्रॉपर वे में मैनेजमेंट नहीं हुआ तो क्या रेगुलर प्रोडक्शन हो सकता है? क्या नहीं होगा. एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. और क्या है कि उसका अगर प्रोडक्शन भी हो गया पर उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो वो भी क्या होगी? क्रॉप सारी वेस्ट हो जाएगी. तो तीनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या होगा? रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए ताकि फूड अवेलेबल हो सके. प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए. प्रॉपर मैनेजमेंट होगा तभी हमारी क्रॉप जो है वो अच्छी तरह से फुलफिल होगी कि रेगुलर उसका प्रोडक्शन हो पाएगा. एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी. और उसका क्या होगा? प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन
हो पाएगा। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस नाउ, when plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called crop. तो what is crop? कि जो हम पढ़ रहे हैं crop production and management, तो first is we know what is crop. crop क्या है? तो when plants of the same kind, same kind मतलब same species, कि एक ही plant एक ही टाइप की species है, are cultivated at one place, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वीट ले रहे हैं तो सभी प्लांट्स किसके हैं? वीट के। राइस ले रहे हैं तो राइस, मेज ले रहे हैं तो मेज, तो क्या है? सेम काइंड, सेम स्पीशीज के आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अ क्रॉप, कि उनको हम क्या कर रहे हैं? कल्टिवेट कर रहे हैं इन अ लार्ज स्केल, एक बिग बड़े ग्राउंड के अंदर लार्ज स्केल पे हम उसको क्या कर रहे हैं? कल्टिवेट कर रहे हैं। तो दिस इज नोन एज द क्रॉप। इसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप, कि एक सेम काइंड के जो प्लांट्स हैं उनको हम एक पर्टिकुलर लार्ज बिग एरिया में क्या कर रहे हैं? कल्टीवेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट, कि जो हम पर्टिकुलर लार्ज जो बिग एरिया में जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो कौन सी क्रॉप है? व्हीट की, सेम काइंड की है और लार्ज एरिया में क्या हो रही है? ग्रो कर रही है, तो वो क्या कहलाएगी? क्रॉप। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. कई टाइप की होती है क्रॉप्स, कि कई वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, कई तरह की क्रॉप्स होती है। नाउ बेसिकली हम क्रॉप्स को उनके सीजन्स के अकॉर्डिंग भी क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं, कि कौन सी रेनी सीजन में है, कौन सी विंटर में है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीजन, अकॉर्डिंग टू सीजन भी हम क्रॉप्स को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। India is a vast country. The climate condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to the another. कि इंडिया के अंदर है, इंडिया में क्या होता है? वेरिएशन होता है क्लाइमेट का, कभी बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, कभी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, कई बार रेनफॉल होता है, तो वेरियस फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, हर एक एक रीजन में अलग अलग होता है। किसी रीजन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, किसी रीजन में कम है, किसी रीजन में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, किसी रीजन में कम है। तो अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप ग्रोस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट सब जगह वहां का एग्रीकल्चर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट होता है, कि जैसे अगर जहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां एग्रीकल्चर ज्यादा अलग होगा। जहां पे रेनफॉल हो रही है, जहां पे बहुत ज्यादा रेन होती है, रेन ज्यादा एरिया में रेन होती है, तो वहां पे जो क्रॉप है वो डिफरेंट टाइप की होगी। तो इस तरीके से हमें, अगर हम ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो पूरी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एग्रीकल्चर हमें मिलता है। Despite this diversity to broadly cropping pattern can be identified where these are. So there are two type of cropping pattern. One is Kharif crop and second is Rabi crop. So there are basically two types of crop. How many types of crop? There are two types of crop. One is Kharif crop and second is Rabi crops. Okay. So this is a very important question. How many types of crops? So there are two types of crop. One is Kharif crop and second is Rabi crop. Now, Kharif crop. These crops which are sown in rainy season are called Kharif crop. कब सोन करते हैं? In the rainy season. Okay. This is a very short question. What is the season where we sown Kharif crop? तो what is the season? This is the rainy season. कौन सा सीजन होगा? Rainy season. The rainy season in India is generally from June to September. कब होता है? June to September.
अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कोकोनट, खरीफ क्रॉप, सॉरी कॉटन एंड खरीफ क्रॉप कि जो इसके एग्जाम्पल्स है कौन कौन से हैं? सोयाबीन आ गई, मेज आ गई, पैडी आ गई, ग्राउंडनट आ गया, कॉटन आ गई। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स एमसीक्यू में पुट अप होते हैं। विच वन इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप? तो आपके पास 1 2 3 एग्जाम्पल्स दे दिए खरीफ के और एक एग्जाम्पल दे दिया जैसे पी का। ओके, तो पी इज अ रबी क्रॉप। तो नाउ विच इज नॉट अ खरीफ क्रॉप? पैडी, मेज, सोयाबीन एंड पी। तो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज पी। ओके, तो इस तरह से एमसीक्यू क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। नाउ द रबी क्रॉप, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। रबी क्रॉप कब होगी? ग्रोन इन द विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च। क्या है इसका मंथ? अक्टूबर टू मार्च। ये मंथ्स भी आपके एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर में पुटअप हो सकते हैं। ओके, नाउ कॉल्ड रबी क्रॉप। एग्जांपल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड वाइन सीड्स। These are the example of rabi crop. Now, beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities are tasks are referred कि मतलब अगर हम क्रॉप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है, तब जाके एक क्रॉप जनरेट होती है, तब जाके एक क्रॉप डेवलप होती है। तो ये हम लार्ज स्केल में तो करते ही हैं। अगर हम घर पे भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स अगर यूज में ले रहे हैं, उनको लगा रहे हैं, तो उनके लिए भी हमें ये सेम प्रोसेस यूज में लेना पड़ेगा, तभी जाके एक प्लांट एक क्रॉप क्या करती है? ग्रो करती है। तो दीज आर द एक्टिविटीज। वो सारी एक्टिविटीज कौन कौन सी है? Towards agriculture practices which are listed below. These are the activities. First, preparation of soil. Second, sowing. Third, the adding manure and fertilizers. Fourth, irrigation. Fifth, protecting from weeds. Harvesting and storage. Okay. So these are the 7 steps which is very necessary for the production of a क्रॉप। और दीज आर द मतलब ये कंटिन्यू सीरीज वाइज स्टेप्स है कि आप इसको किसी एक स्टेप को स्किप नहीं कर सकते। कि जैसे प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, उसके बाद क्या करो? एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो आपका वो क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आपकी क्रॉप पूरी ग्रो नहीं करेगी जब आप उसके अंदर सोइंग ही नहीं करोगे, तो एड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। और अगर आपने मान लो सोइंग कर दी, उसके बाद इरिगेशन कर दिया और मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज में नहीं लिए, तो आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी? पेस्टिसाइड से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसलिए आपको इसके अंदर अगर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स आप यूज भी ले रहे हैं तो कितनी क्वांटिटी में उनको यूज में लेना चाहिए, एग्रीकल्चर में उनका कैसे यूज में लेना चाहिए, क्योंकि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स आपकी क्या कर रहे हैं? सॉइल की फर्टिलिटी रेट को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। दैट इज द रीजन कि आपकी सॉइल क्रॉप क्या है? वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। ओके, नाउ द फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. What is the most important? क्या है most important? कि one of the most important tasks in agriculture is turn the soil and loosen it. तो what is the preparation of the soil? क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में? तो हम सॉइल को क्या कर रहे हैं? टर्न कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं। बेसिकली हम सॉइल को क्या कर रहे हैं? लूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई कि जब न्यू क्रॉप डेवलप करेंगे तो हमारी सॉइल कैसी होनी चाहिए? लूज होनी चाहिए। तो टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल, तो व्हाट विल वी डू इन द एग्रीकल्चर? टर्न द सॉइल एंड लूज इट. दिस इज अ प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल.
This allows the roots of penetrate deep into the seed. अगर हम लूज कर रहे हैं सॉइल को, टर्न कर रहे हैं सॉइल, तो इससे क्या हमें बेनिफिट होगा? तो इससे हमें ये बेनिफिट होगा कि दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल. ये क्या करेगी हेल्प? वो जो सॉइल के अंदर रूट्स को डीपली इनसाइड डीपली पेनिट्रेट करने में क्या करेगी? हेल्प करेगी, ताकि जो रूट्स है वो इजीली सॉइल के अंदर डीप तक जा सके. ओके, नाउ द लूजन सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. कि जब वो सॉइल जब सॉइल ग्रो कर रही है, मतलब जब सॉइल के अंदर हमने क्रॉप लगाई है, तो वो क्या हो रहा है कि वो डीप साइड में इजीली मूव कर सके और इजीली वहां पर क्या कर सके? वो ब्रीथ कर सके. तो बेसिकली द सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल. वो क्या कर रही है? इजीली सॉइल के अंदर जब डीपली भी वो ग्रो करेगी, तो वहां पे भी इजीली क्या कर सके? ब्रीथिंग कर सके. अगर रेस्पिरेशन ब्रीथिंग नहीं करेंगी तो फिर सॉइल कैसे उसमें ऊपर ऑक्सीजन नहीं आई? अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस का एक्सचेंज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो डेड हो जाएंगे. तो क्या कर सके? वो इजीली ब्रीथ कर सके. Why does the loosening of the soil allows the root to breathe easily? अब ये सॉइल को कैसे अलाउ करती है इजीली ब्रीथ करने में? The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. तो बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, द वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज द अर्थवर्म. दिस इज द अर्थवर्म. अर्थवर्म को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर में फार्मर का फ्रेंड होता है अर्थवर्म. ये किसमें हेल्प करता है? ये लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल में क्या करता है? हेल्प करता है. अर्थवर्म क्या करते हैं? अर्थवर्म्स सॉइल्स को च्यू करते हैं. च्यू करने के बाद वो उसको वापस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं. तो जब रिलीज करते हैं तो जो रिलीजिंग सॉइल है, दिस इज वेरी फर्टाइल सॉइल. वो क्या होती है? बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है. तो जो लूजमेंट सॉइल्स हैपन इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल. वो क्या करते हैं? जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है वो किसमें हेल्प करते हैं? अर्थवर्म और माइक्रोब्स वो सॉइल को लूज करने में हेल्प करते हैं. दैट्स व्हाई जो रूट्स है वो इजीली क्या कर सकती है? ब्रीथ कर सकती है. These organisms are friends of the farmer. ये organisms क्या होते हैं? Friends होते हैं farmer के. Since they further turn and lose the soil and add humus to it, but why the soil needs to be turned and loosened? कि इसमें क्या है कि ये क्या कर रहे हैं? ह्यूमस भी इसके अंदर क्या हो रहा है कि the further turns loose the soil and add humus to it. आफ्टर दैट इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? ह्यूमस. की उसमें क्या हो गया? जो अपर लेयर ऑफ द सॉइल, टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज नोन एज द ह्यूमस, क्योंकि वहां पर क्या प्रेजेंट है? न्यूट्रिशन. जितने भी सॉइल को मिलते हैं वो सारे न्यूट्रिशन कहां पे प्रेजेंट है? टॉप लेयर ऑफ द सॉइल में प्रेजेंट है. You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. कि ये क्या होता है कि जो डेड सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या? इन एडिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल गेट डिकम्पोज. कुछ एनिमल्स क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं. तो वो क्या हो जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं. डिकम्पोज होने के बाद किसमें मिक्स हो जाते हैं? सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. एंड डेड प्लांट्स ऑल्सो, जो प्लांट डेड हो जाते हैं वो भी सॉइल में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. तो वो क्या हो गए? डेड हो गए. तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो वापस कहाँ रिलीज हो गए? सॉइल के अंदर रिलीज हो गए. कि भाई ये क्या
क्या प्रोसेस है कि सॉइल से उन्होंने न्यूट्रिशन गेन किया था, भाई प्लांट से उन्होंने न्यूट्रिएंट्स लिए थे, अब वो प्लांट डेड हो गए, एनिमल डेड हो गए, तब क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन, मतलब उनका ब्रेकडाउन हो रहा है। ब्रेकडाउन हो कि वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म में, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर वो वापस किसमें मिल रहे हैं, सॉइल के अंदर मिल रहे हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स। तो अब जब वो डिकम्पोज हुए तो उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो अब किसमें मिक्स हो गए, सॉइल में मिक्स हो गए। और अब क्या कर रही है, सॉइल उन न्यूट्रिएंट्स को वापस क्या कर लेती है, रीअब्सॉर्ब कर लेती है। सिंस ओनली a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of the soil bring the nutrient rich soil of the top so the plant can use these nutrients. Thus, turning and loosening of the soil is very important for cultivation of crop. The process of loosening and turning of the soil is called tilling and plugging. इसको कि क्या होता है tilling and plugging? The process of loosening and turning of the soil is called tilling and plugging. This is done by using a plug. Plugs are made of wood and iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugged field की मतलब अगर हम क्या कर रहे हैं, प्लगिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, सॉइल को लूज और टर्न करने में हेल्प लेते हैं हम प्लगिंग का। अगर कई बार सॉइल जो है एकदम ड्राई हो जाती है तो उसको हम पहले वाटर के थ्रू उसको वेट करते हैं और आफ्टर दैट उसमें हम क्या करते हैं, प्लगिंग करते हैं। The plugged field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to break these crumbs कि जो कई बार क्या हो जाते हैं, क्रम्स बन जाते हैं। तो जब हम सॉइल को लूज कर रहे हैं, टर्न करने, तो क्रम्स को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। अदरवाइज ये क्रॉप प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते और वो जो न्यूट्रिएंट है वो उसी के अंदर रह जाते हैं। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल for irrigation. Leveling of soil is done with the help of leveler. कि अब क्या है, जब सॉइल को हमने टर्न कर लिया, लूज कर लिया, तब हम उसको क्या करेंगे, एक प्रॉपर लेवल में लाएंगे। वो किसकी हेल्प से लाएंगे, लेवलर की हेल्प से। Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with the soil. ये जो लेवलर है इससे हम सॉइल के अंदर मैन्योर को ऐड करने में भी हम इसकी हेल्प लेते हैं। द सॉइल इज मॉइस्चर बिफोर सोइंग, कि सोइंग से पहले हमें सॉइल को क्या प्रोवाइड कराना चाहिए, मॉइस्चर या फिर वाटर, ताकि वो मॉइस्ट हो सके। ओके, थैंक यू। रिमेनिंग टॉपिक हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।